Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Jai Shri
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्ण सतीश प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण Piyush Abhinav, thank you. Hare Krishna, thank you very much Hare Krishna. for joining. Sing a song. So today Priyesh led the chanting. Priyesh. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Priyesh. करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ मोरा स्वरूप रूपा सनातन दश रघुनाथ पतित पावन
दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा एक काले कोथा गेला गोरा नटरा असणे कोटिवो माथा अनले पसिवो असणे कोटिवो अनले पसिवो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पावो केशव संगीरा संगे जे कैलो बेला केशव संगीरा संगे जे कैलो बेला ते संगना पय कंदे नरोत्तमदास ते संगना पय कंदे नरोत्तमदास जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर जे अनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Jagatnath Baladeva Jaya Mashubhadra Jaya Jagatnath Baladeva Jaya Gopala Jaya Nandalala Gopala Jaya Nandalala Jaya 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 Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Sri Jai. Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nastapráyeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavate Naistike
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. The reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text number 33. Okay, Priyas, you can read. हरे कृष्ण सर. Hare Krishna. अथ चेत्त्वम् इमां धर्मयम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं करिष्यसि ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवपश्यसि. हित्वा पापमवाप्स्यसि. Translation. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. Purport. Arjuna was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including even Lord Shiva. After fighting and defeating Lord Shiva in the dress of hunter, Arjuna was pleased the Lord and Arjuna pleased the Lord and received as a reward a weapon called Pashupat Astra. Everyone knew that he was a great warrior. Even Dronacharya gave him benedictions and awarded him the special weapon by which he could kill even his teacher. So he was credited with so many military certificates from many authorities, including his adoptive father Indra, the heavenly king. But if he abandoned the battle, not only he would neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. So Krishna is instructing here to Arjuna that this following Swadharma is the religious duty. So religious duty, what is religious duty? We must. Krishna is telling that if you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. So what is religious duty? First we should understand this. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्वधर्म दो प्रकार के हैं. Religious duty is actually linked to that. Religious duty is whatever mentioned in the Shastra. As per the Shastric injunction, if we are not
actually not following शास्त्र in our life, that means हम लोग शास्त्र को फॉलो ना करके हमारे जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, then we are not following the religious duty. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा एक रिलीजियस ड्यूटी है, वी हैव टू सर्व हमारे पिता माता, हमारे भाई बहन सबको सर्व करना, हमारे फैमिली, ये हमारा ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी एज पर शास्त्रिक इंजंक्शन वी हैव टू फॉलो and we have to maintain our family, we have to serve them, and simultaneously also we have to work for our society. But if something is going wrong against Shastra and we are thinking it is my religious duty to do that, then it is not perfect, not correct. Like many examples I have given, right? So following religious duty is very important, but simultaneously we must see whether we are following properly as per the शास्त्रिक injunction or not. जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम महाभारत से, जब विराट युद्ध खत्म हुआ, विराट युद्ध आप लोग जानते होंगे, सब लोग देखे होंगे महाभारत या सुने होंगे। जब अज्ञातवास खत्म होने से जस्ट उसी दिन, जिस दिन खत्म हुआ अज्ञातवास पांडव लोगों का, उसी दिन विराट, जो जिस देश में ये लोग छुपे थे अज्ञात रूप में पांडव लोग, उसी विराट राज्य पर आक्रमण कर दिए कौरव लोग, ये दुर्योधन एंड पार्टी। दुर्योधन के साथ सब महायोद्धा थे, भीष्मदेव, कर्ण, दुर्योधन सब थे, और विराट के साथ कौन थे? अर्जुन जो था, अर्जुन थे बृहनला के रूप में थे। तो उन्होंने रथ चला रहे थे उनका, किनका? विराट के जो लड़का था उनके रथ चला रहे थे। अब विराट का लड़का इतने महायोद्धाओं को देख के बड़े परेशान हुए, परेशान होकर उन्होंने वहीं पे ही युद्ध छोड़ के भागने के रेडी हो गए। भाग रहे थे, अर्जुन उनको पकड़ ले, बोले कि आप भागो मत, युद्ध करना है, आप अगर नहीं करेंगे हमको करना है। तो वो डर के चौंक गया, बोला आप तो बृहन्नला, आप तो ये हैं युनच, आप कैसे युद्ध करेंगे? आप तो मेरी बहन को सिखा रहे हैं, ये नृत्य सिखाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम अर्जुन हैं, आप डरो मत। तो अर्जुन ने अपना जैसे रूप दिखाए तो वो एकदम चौंक गया, बोला सही है। तो फिर उन्होंने रथ चलाने लगा, अर्जुन बैठ गए रथ पर। और जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन अकेले सारे महायोद्धाओं को परास्त कर दिए। कर्ण था, भीष्मदेव थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन थे, दुशासन थे, सब परास्त होकर आ गए वापस। सब आने के बाद कर्ण गए थे मिलने के लिए, किनसे? भीष्मदेव से। भीष्मदेव से मिले, पूछे भीष्मदेव को कि लोग मुझे महायोद्धा बोलते हैं और मेरा रिलीजियस ड्यूटी है कि मैं फाइट करूं, और मुझे जो शेल्टर दिया है दुर्योधन, उसका रक्षा करूं, ये मेरा ड्यूटी है। और आप भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं हर किसी के साथ युद्ध में जीतता हूं, लेकिन अर्जुन के सामने क्यों नहीं जीत पाता हूं?
तो भीष्मदेव बोले कि आप बिल्कुल सही बोले हैं, आपका स्थिति जो है मेरा भी वही स्थिति है। मैं भी ऐसा योद्धा हूँ कि मुझे कोई भी इस संसार में परास्त नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े देवता लोग भी मुझे परास्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी अर्जुन के सामने परास्त स्वीकार करता हूँ, परास्त हो जाता है मेरा, मैं भी टिकता नहीं हूँ अर्जुन के सामने। तो कर्ण पूछे ऐसे क्यों? तो भीष्मदेव बोले ऐसे इसीलिए है कि अर्जुन के साथ जो है धर्म है, अर्जुन जो है धर्म के साथ है हमेशा। वो धर्म को रखने के लिए ही वो युद्ध करते हैं, लेकिन हम लोग जो है अधर्म के साथ हैं। दुर्योधन जो है अधर्म का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, और हम लोगों का कंडीशन ऐसे है कि हम लोग अधर्म के साथ ही देने के लिए मजबूर हैं, और हम दे रहे हैं उसके साथ। तो इसलिए हमारा जो परास्त होता है, ये हम लोगों का बाहुबल ये नहीं है, ये हमारा परास्त जो है ये सूचित करता है कि हम लोग अधर्म के साथ। तो इसलिए हम लोगों को ये समझनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो भी रिलीजियस ड्यूटी करने जा रहे हैं, वो रिलीजियस ड्यूटी कितना शास्त्र संगत है, शास्त्र के हिसाब से कितना सही है, या फिर हमारे आचार्य या फिर हमारे जो वैष्णव लोग, साधु लोग शास्त्र संगत ये है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम उसको फॉलो नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम लोग अधर्म करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कई बार बताया हूँ कि अर्जुन जो है इवन बैटल फील्ड में खड़े होकर भी वो भक्ति कर रहे थे, क्योंकि वो कृष्ण जो बोल रहे थे उसको मानकर काम कर रहे थे। बैटल फील्ड में खड़े होकर भी वो भक्ति कर रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो अर्जुन जो है बहुत फेमस है फाइटिंग क्षेत्रीय के हिसाब से बहुत ही फेमस। इवन इफ वो बाहुबल में इतना फेमस नहीं है, मतलब बाहुबल में वो कर्ण या फिर भीष्मदेव के साथ नहीं, लेकिन उसका स्पेशल क्वालिटी है he actually with him Krishna is always there. He is a devotee of Krishna. That is his special characteristic. तो इसलिए उसके साथ लॉर्ड शिव भी बहुत प्रसन्न हुए थे जब वो गए थे पशुपत अस्त्र के लिए। लॉर्ड शिव को प्रसन्न करके लाए थे, युद्ध भी किए थे शिव जी से। तो उस समय भी शिव जी बड़े प्रसन्न हुए थे। सारे उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए रहते हैं प्रसन्न क्योंकि वो भक्त। इवन बताया गया द्रोणाचार्य, भीष्मदेव सब प्रसन्न रहते हैं अर्जुन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, डिवोटी हैं, इसलिए उनके ऊपर सारे प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए भक्त बनना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम भक्त बन जाएं, अगर भक्ति करें, भक्ति मार्ग में चलें, ऑटोमेटिकली everybody will love us and we will love everyone and we will get the blessing of everyone. इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो इसलिए भक्त बनना ही और भक्त बनने के लिए कोशिश करना ही बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसलिए भक्ति करना, अर्जुन जैसे बनना, या फिर अर्जुन जैसे तो हम बन नहीं पाएंगे, लेकिन अर्जुन के पदानुसरण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कृष्ण प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, अगर अर्जुन वहां पे छोड़ के भाग जाते रण क्षेत्र, तब भी क्या होता? वो भी शास्त्र का ये दे के कोट करके शास्त्र को
वो भी भागना चाहते थे युद्ध को। अगर भाग जाते तो क्या होता? तो उनका एक तो बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं कि अगर आप भाग जाओगे तो एक तो आप पाप करो, पाप के भागी होगे, क्योंकि आप जो है आपका रिलीजियस ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। रिलीजियस ड्यूटी उनका था युद्ध करना, युद्ध करके धर्म का स्थापना करना, तो उससे वो भाग रहे हैं, मतलब वो पाप कर जा रहे हैं एज ए क्षत्रिय। तो इसलिए हम लोगों को भी यही समझनी चाहिए कि हमारा जो रिलीजियस ड्यूटी है उसको अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम पाप की भागी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर हमारे बेटा, हमारे फैमिली, हमारे पिता माता, किसी को भी हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं दे रहे हैं या फिर कृष्ण भावना भावित नहीं कर रहे हैं तो हम लोग पाप के भी भागी हो रहे हैं। कैसे पाप के भागी हो रहे हैं? जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, अगर हम किस कृष्ण को ऑफर नहीं कर रहे हैं, भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, तो पाप की भागी होते हैं हम लोग। और वही चीज हम लोग अगर करेंगे पूरे फैमिली, पूरे सोसाइटी में, तब भी हम पाप के भागी होते हैं। इसलिए हम हमेशा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रसादम सेवा करनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग वो पाप से मुक्त होते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत लोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में ही रुचि रखते हैं। हम देखते हैं इस्कॉन में जाएंगे तो कई बड़े बड़े लोग आते हैं, धनी व्यक्ति भी आते हैं, वहां प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खिचड़ी प्रसाद जो भी अपना दे के बना कर ला के भक्त लोगों से फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत ऐसे हम लोग देखे हैं, बहुत धनी व्यक्ति भी आके करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है ये बढ़िया, ये सबसे ज्यादा रिलीजियस प्रिंसिपल है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। और संकीर्तन करना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना, चैंटिंग करना, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जिससे सारा वातावरण को हम लोग शुद्ध करते हैं और सारे सबको हम लोग बेनिफिट प्रदान करते हैं। इसमें we give benefit to others, everyone, all the living entities. अगर इवन कोई कमरे के अंदर बैठ के हम लोग जोर जोर से चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसी कमरे में कितने सारे जीव है, छिपकली है, कॉकरोच है, चींटी है, सब लोग बेनिफिट मिलता है, सब लोगों, एवरीबडी गेट्स बेनिफिट। तो इसलिए कलयुग में द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्रिंसिपल, रिलीजियस ड्यूटी है संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में और कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में कुछ भी हम लोग करें शास्त्र के मुताबिक, उसमें हम लोग कोई प्यूरिटी प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी अ, कोई भी कोई भी फल भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज में इम्प्यूरिटी भर गया है, कोई भी चीज प्योर नहीं। इवन जो ब्राह्मण लोग हमारे लिए पूजा करते हैं, वो भी, उनके अंदर भी प्योरिटी नहीं है। और जो हम लोग जो भी सामान यूज करते हैं भगवान के लिए, उसमें भी प्योरिटी नहीं है, किसी में भी कुछ नहीं है। तो हम इसलिए कहाँ पे, जब जो हम लोग शास्त्र के फॉलो करके हम लोग पूजा करेंगे हम लोग, तो उस पूजा में भी वो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञों को ही प्रायोरिटी दिया गया। इवन भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सोमेधस। जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं कलयुग में, वो क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो संकीर्तन यज्ञ है उसी को ही करते हैं। और किसको पूजा करते हैं? गौरांग महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को पूजा करके संकीर्तन यज्ञ करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। सुमेध मतलब इंटेलिजेंट।
कलयुग में the most intelligent class people are those who actually do this Sankirtan Yajna. And that is the highest form of religious duty, highest form of religious principle in the Kali Yuga. Many Shastras gave this. So we are in Kali Yuga, therefore Kali Yuga में very difficult. हम लोग ऐसे सागर में अभी हैं जो पूरा दोष युक्त है. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण. हमारे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि ये जो कली है, कलियुग स्पेशली, ये फुल ऑफ फॉल्ट्स, ओशन ऑफ फॉल्ट्स. कलेर दोष निधि राजन. निधि मतलब क्या है? निधि मतलब है सागर, ओशन. तो कलियुग जो है ये सागर, महासागर, दोष रूपी महासागर है. तो जिस सागर दोष रूपी हो और उस सागर में हम रहते हो, और हम लोग कहाँ दोष से मुक्त हो पाएंगे? लेकिन दोष से मुक्त हो सकते हैं. उसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कलियुग में एक ही बहुत बड़ा महान गुण है कलियुग का. क्या है वो? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण. एक महान गुण है कलियुग का. वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम. कीर्तन, हरि कीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण का संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, इससे हम लोग मुक्ति हो सकते हैं. ये जो दोष रूपी सागर हैं, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. तो इसलिए हर रोज हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, जप करना, और साथ साथ हम लोगों को जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं प्रभुपाद, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसको फॉलो करके हमारे जीवन को सक्सेस कर सकते हैं. तो इसलिए हम लोगों को जो भी हमारे आचार्य लोग दिए हैं वही हमारे लिए रिलीजियस प्रिंसिपल है, रिलीजियस ड्यूटी. तो उसी को ही हम लोगों को फॉलो करके आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे कृष्ण भावनामृत. ठीक है. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. Should stop here. Hare Krishna. I should stop. Hare Krishna. हरे कृष्ण. आत्माराम प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु जी प्रणाम. प्रभु जी, आज जो श्लोक हमने पढ़ा, उस श्लोक में जो है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का ड्यूटी है कि वो लोगों की रक्षा करे. और यहाँ पर वो अपना जो ये युद्ध है वो युद्ध करने से मना कर रहा है, मतलब अपना जो ड्यूटी है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अपना ड्यूटी को भी नेग्लेक्ट करना एक तरह से पाप है, और ड्यूटी सही से नहीं करना एक मतलब बहुत बड़ा पाप है. उसका ड्यूटी है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना. तो इसी प्रकार देखते हैं कि ये एक शिक्षा भी यहाँ से हमें मिलती है कि जिसको भी जो भी ड्यूटी मिला है, जैसे कोई अगर इंजीनियर है वो अच्छा से काम नहीं करता है तो कई लोगों की लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर एक पुल बनाने वाला इंजीनियर है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी पुल गिरने से जो है कि बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है. इसी तरह हर प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई टीचर है या प्रोफेसर है, अगर वो उसका ड्यूटी है कि उसको बच्चों को पढ़ाना, ज्ञान बांटना, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो वो भी एक तरह से पाप है. कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन का ड्यूटी है कि वो युद्ध करे और लोगों से उसकी रक्षा करे. और क्योंकि ये उसका ड्यूटी है तो ये इसीलिए ये धर्म युद्ध है, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है. इसमें बताया गया है कि अगर हम धर्म के साथ हैं तो कितना भी बड़ा युद्ध है वो हम जीत सकते हैं अगर हम धर्म के साथ हैं. क्योंकि धर्म के साथ केवल हमने देखा कि महाभारत में जो है
पांडव 5 ही थे और बहुत ही कम सेना थी उनके पास, और जो कौरव थे वो 100 भाई थे और कई वीर योद्धा उनके साथ थे, जबकि अर्जुन विराट युद्ध में अकेले ही वो पूरा युद्ध जीत लेता है। तो ये क्यों जीत लेता है, ये आज के प्रसंग में डिस्कस भी हुआ कि क्योंकि वो धर्म के साथ रहता है, और जो अधर्म का साथ देता है उसका कितना भी बड़ा ये हो, उसके पास सेना हो, उसका अंत निश्चित है। तो धर्म के साथ लेकर अगर हम अपने इस जीवन रूपी महाभारत का युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से ही विजय प्राप्त होगी। और ये जो है जीवन भी एक तरह से महाभारत है, और उसमें हमें अपना जो है जो हमारे शास्त्र में जो ज्ञान बताया गया है उस ज्ञान को लेकर अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो जो बताया गया है कि हमें धर्म का साथ होकर धर्मपरायण काम करना चाहिए, और कलयुग में जैसे बताया गया कि ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में प्रभु का नाम ही सब कुछ है। तो हमें जो है प्रभु का नाम लेने में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, और यही मेन सार है कि हमें अपना समय जो है प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए, और जो कर्म करना चाहिए वो धर्म परायण कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा सतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आज के श्लोक के माध्यम से मैंने जाना, हम लोग को ये जानकारी मिली कि श्री कृष्ण और अर्जुन हमें ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे ऑपोजिशन कितनी भी बाहुबली या कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जैसे कि एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को अब चुनने कहा था कि मुझे और मेरी सेना को चुन लो, तो दुर्योधन ने उनकी पूरी सेना को चुना था, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि इतना सेना चुन लेंगे, इतनी सेना हो जाएगी तो मेरी जीत आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो बाहुबली को चुनना चाह रहा था। जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण अगर हमारे साथ रहेंगे तो धर्म हमारे साथ होगी, और धर्म हमारे साथ होगी तो जीत हमारी ही होगी। इसलिए युद्ध हमेशा बाहुबली के बेसिस पर नहीं लड़ा जाता है, युद्ध हमेशा धर्म और हिम्मत के बल पर लड़ा जाता है। इस श्लोक में एक बार और बताया कि अर्जुन के पास बहुत सारे विपन थे, इंद्र से प्राप्त हुए थे, द्रोणाचार्य से प्राप्त हुए थे, और भी बहुत सारे गुरु से प्राप्त हुए थे। अगर अर्जुन इस युद्ध में इस सब अस्त्र का प्रयोग धर्म के लिए नहीं करता तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। उसी तरह हम लोग भी हमारे सांसारिक जीवन में भी जो भी हमें जिम्मेदारी मिलती है, अगर हम उसे पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं करते हैं तो वो शक्ति छीन हो जाती है, उसका कोई मीनिंगलेस नहीं होता, वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो हमें अपना सही रिसोर्स का, सही शक्ति का, सही ज्ञान का सही जगह यूज करना चाहिए, धर्म के में यूज करना चाहिए। इस श्लोक में हमने ये भी जाना कि भगवान की भक्ति पूजा पाठ करके नॉर्मली जो पूजा पाठ की सामग्री यूज करते हैं वो जनरली इम्प्योर होते हैं, जनरली ब्राह्मण भी इम्प्योर ही होते हैं। तो सिर्फ पूजा पाठ, अगरबत्ती, धूप से माध्यम से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस कलयुग में प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र साधन भगवान का संकीर्तन करना है, उनकी भक्ति करना है, धर्म की रक्षा करना है, धर्म के साथ अपने समाज सेवा, अपना स्वधर्म पालन करना है, जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार आज के दिन में मैंने ये सीखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, ब्यूटीफुल। हरे कृष्ण कुंदन। हरे कृष्ण। थैंक यू सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया, और आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है अगर कोई भी जो योद्धा या फिर कोई भी जो है अगर अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है और
बताया गया जो अर्जुन एक फाइटर है, अगर वो उस फाइट को जो उनका जो ड्यूटी है उसको अगर वो नहीं ये करते हैं तो उनका रिपुटेशन जो है एज अ फाइटर वो चला जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से वो इम्प्लोर कर रहे हैं वो सीन को भी। तो ये सब चीजें यहाँ पे आज बताया गया, जिसमें श्रील प्रभुपाद जो बताए हैं अर्जुन जो बारे में कि कितने बड़े वो फाइटर थे, इवन वो लॉर्ड शिवा को भी वो डिफीट किए थे, और उसके अकॉर्डिंग उनको वो फिर जो है रिवार्ड मिला था, जो वेपन था पाशुपत अस्त्र। और उनके पास ये भी बेनेडिक्शन था कि वो अपने जो गुरु हैं जो द्रोणाचार्य हैं उनको भी जो है वो ये कर सके, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो है उनको कैसे वो किया जाए, उनको मारा जाए गुरु को। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि अगर आप जाकर उनसे पूछेंगे तभी वो बता पाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो अर्जुन जो है वो कितने बड़ा पराक्रमी योद्धा है और किस तरह से ग्रेट डिवोटी है, और जो एक क्षत्रिय में जितना जो गुण होना चाहिए जो फाइट के लिए एज ए फाइटर, तो सारा गुण उनमें है, लेकिन वो जो माया जो भगवान का उस माया में वो उलझ के रह जाते हैं। तो इस वजह से वो फाइट करने से वो मतलब वो विड्रॉ करना चाहते हैं इस फाइट से। और आज सर ने बहुत सारी चीजें बताया, उसमें सर ने ये बताया कि जो हम लोग कलयुग है, कलयुग में जो प्योरिटी है वो नहीं है, और किसी भी चीज में प्योरिटी नहीं है। तो प्योरिटी के लिए हम लोग को सिर्फ एक मार्ग साधन, ऑलरेडी सर ने एक सैटरडे क्लास में बताया था कि पहले जो है अष्टांग योग जो होता था वो करते थे लोग, बहुत सारे यज्ञ करते थे एंड वो सेक्रीफाइस करते थे, उसके अकॉर्डिंग वो अष्टांग योग से वो प्योरिटी आता था, और उसके अकॉर्डिंग वो जो है ऋषि मुनि ये सब करते थे। लेकिन आज के कलयुग में जो अष्टांग योग है वो पॉसिबल नहीं है, बट जो हरिनाम संकीर्तन है वो हम लोग करके अपने आप को वो कर सकते हैं। और वो संकीर्तन जो है तभी हो पाएगा जो हम लोग जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है जैसा सर ने बताया, जो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट और नो इलिसिट सेक्स, अगर ये सब चीज पे हम लोग कंट्रोल करके अगर हम लोग संकीर्तन करते हैं, और जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके अकॉर्डिंग जो गुरु हैं हमारे, जो उनको अगर हम लोग बताए गए मार्ग पर सिर्फ हम लोग चलते हैं, तभी हम लोग इस कलयुग में प्योरिटी आएगा और हम लोग एलिवेट हो सकते हैं। तो यही चीज आज देखे सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रियेश। हरे कृष्णा सर। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो कृष्ण जो है, श्री कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं अपना एक्सप्लेनेशन, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि तुमने आज युद्ध नहीं करा तो जो तुम अपने धर्म से जो भटक के और जो अगर दूर जाओगे तो वो सबसे बड़ा जो होगा वो पाप होगा, सिन होगा। और तो हमने ये देखा कि श्री कृष्ण ये समझाने की कोशिश करें कि धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और हमने पहले भी देखा है कि जनरली हम धर्म को रिलीजन से कंपेयर करते हैं। रिलीजन एक्चुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, धर्म एक्चुअली वो कर्म है जो हमें जो वेद और उपनिषद लिखे गए उसके उस उनके बताए हुए रास्तों पे जो चल के हमें जो कर्म करना चाहिए वो धर्म होता है। और हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि हमारे 2 टाइप के धर्म होते हैं। एक वो धर्म जो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है, जो हमें फाइनली अचीव करना है, और एक वो धर्म जो हमारे मटेरियलिस्टिक नेचर में है, जो हमने इस बॉडी जो हमने बॉडी अचीव करी है उसके अकॉर्डिंग में हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा धर्म है, तो हमें वो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में चले जाएं, तो वो भी सही नहीं होगा। तो पहले हमें इस बॉडी की जो मटेरियलिस्टिक जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना है, और उसके बाद फिर हमें फाइनली साथ साथ वो भी स्पिरिचुअल की ओर भी बढ़ना है। तो श्री कृष्ण ने और ये भी बताया था कि इस जो कलयुग है उसके दोष क्या है। जैसे मैं सैटरडे क्लास में देखा था कि जब पांडवों ने पूछा था कि कलयुग आ रहा है और उसके गुण क्या होंगे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सारे दोष बताए थे कि ये सभी दोष होंगे कलयुग के अंदर, और कोर एसेंस ही जो कलयुग का होगा वो पाप होगा। हम कितनी भी जो विधि बताई गई है वेदों में पूजा की या फिर जितने भी तरीके बताए गए वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई यज्ञ काम नहीं करेगा, बिकॉज सभी चीजों में इतना इम्प्योरिटी होगी, सभी में इतना पाप होगा कि ये सब मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इस ऐसी सिचुएशन में एक ही जो सॉल्यूशन बचेगा वो है
श्री कृष्ण का स्मरण करना, और ये गीता में खुद श्री कृष्ण बता रहे हैं, तभी इस मटेरियलिस्टिक जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं तभी हम इस दूर हो पाएंगे और फाइनली हम स्पिरिचुअलिटी अटेंड कर पाएंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें हमें कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी पाने के लिए। Hare Krishna. Thank you, please. Beautiful. Hare Krishna. अभिनव। हरे कृष्ण सर। तो आज जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे स्वधर्म के बारे में, हमने पढ़ा था कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक स्तर पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्तर पे। आज हमने अपने रिलीजियस धर्म के बारे में पढ़ा, यह जो शास्त्रों के आधार पे हमें बताया गया है, यह हमारे रिलीजियस धर्म होता है। जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया कि माता पिता की सेवा करना, परिवारजनों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो हमारा रिलीजियस, ये जो हमारे रिलीजियस ड्यूटी है वो कितना शास्त्र सम्मत है, उस शास्त्र के आधार पे कितना सही है। अगर वो शास्त्र के आधार पे सही नहीं है तो हमें वो नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने अर्जुन के एग्जाम्पल से देखा कि उनका जो सारा कार्य होता था वो शास्त्र सम्मत होता था, इसलिए वो हमेशा धर्म की तरफ से लड़ते थे, जिसके कारण उन्हें कर्ण, भीष्म पितामह, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े योद्धा का भी उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका जो सारा कार्य होता था वो धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से होता था। इसलिए सभी लोग जो थे, जो सभी उनके गुरुजन और भीष्म पितामह थे, वो और सभी देवता थे, उनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। और हमने पढ़ा कि कलयुग के बारे में पढ़ा हमने कि कलयुग के दोषों के बारे में पढ़ा। तो जिससे हमें जाना कि ये जो हमारा रिलीजियस ड्यूटी है वो संकीर्तन यज्ञ करना है, क्योंकि जो बाकी सभी पूजा के विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, वो कलयुग में काम नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ इतना इम्प्योर है। पूजा की विधि, पूजा की सामग्री, इवन जो ब्राह्मण पूजा करवाते हैं, तो सब कुछ में इतना इम्प्योरिटी है कि ये जो कलयुग में काम नहीं करते हैं, इफेक्टिव नहीं है। तो सबसे प्योर वे है कलयुग में भगवान की सेवा करने का, वो है संकीर्तन यज्ञ। अगर हम पूरे मन से सच्चे हृदय से चैंटिंग करते हैं, तो इसके माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु और गौरांग प्रभु को सर्व करते हैं, और और कृष्ण महामंत्र से हम ये सब यह दोषपूर्ण और पाप से भरे कलयुग में भी डिवोशन कर सकते हैं। तो यही हमने पढ़ा सर आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू अभिनव। ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। पीयूष। हरे कृष्णा सर। हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो हैं वो अर्जुन को जो है प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। और आज जो है, आज के श्लोक में जो है भगवान जो है श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर जो है आप युद्ध नहीं करोगे तो आप जो है एक तो पाप के भागी बनोगे, और साथ ही साथ में जो एक श्रेष्ठ वॉरियर होने का जो रेपुटेशन है आप उसको भी जो है खो देंगे। और पाप के भागी आप इसलिए बनेंगे क्योंकि एज अ क्षत्रिय होने की वजह से जो है आपका ये धर्म है, रिलीजियस ड्यूटी है कि जो है आप जो है वो युद्ध करें, धर्म के लिए युद्ध करें। और सर ने बताया कि यहाँ पे रिलीजियस ड्यूटी क्या होता है। तो जो भी शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रिक इंजंक्शन के हिसाब से जो है जो भी शास्त्रों में दिया गया है उसको जो है अगर फॉलो करते हैं तो ही जो है मतलब बोला जा सकता है कि जो है वो रिलीजियस ड्यूटी को जो है वो फॉलो जो है हो रहा है। मगर हम जानते हैं कि ये जो है कलयुग है, और इसके अंदर जो है शास्त्रों के हिसाब से चलना और वो उसकी जो है ड्यूटी को जो है वो फॉलो करना, वो हम लोग के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सर ने बताया कि जो है ये कलयुग ही जो है पूरा दोष से जो है भरा हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोग भी जो है दोष रहित नहीं हो सकते, और प्रॉपरली जो है शास्त्रों को, शास्त्रिक इंजंक्शंस को, शास्त्रों के अंदर लिखी गई जो है बातें हैं जो उनको जो है हम लोग पूरी तरह से जो है फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए जो है इसका सबसे जो है आसान तरीका जो है हम लोग को हमारे गुरुजन ने, आचार्य लोगों ने जो है बहुत अच्छा जो है दिया है कि सबसे जो है आसान तरीका इस कलयुग के अंदर जो है वो ये रहेगा कि रेगुलर जो है हम लोग जप करें, हरिनाम जप करें, और
साथ में जो है हरिनाम संकीर्तन करें। तो जो है अगर हम लोग इतना ही अगर कर लेते हैं तो भी जो है हम लोग पाप मुक्त हो सकते हैं। और साथ में साथ ही साथ में जो प्रभुपाद ने जो है हम लोग को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिया है, हमें जो है पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग उसको जो है बहुत अच्छे से फॉलो कर सके। और जो हमारे जो आचार्य लोग हैं उनके द्वारा जो प्रिंसिपल जो है सेट किए गए हैं, उनको भी जो है हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल जो है हम लोग अच्छे से फॉलो कर सकें। आज यही देखिए सर। हरे कृष्णा सर। Krishna, Hare Krishna, Piyush. Thank you. Beautiful. I think Ram Gopal is there. Hare Krishna, Ram Gopal. Hare Krishna. Good morning, sir. Good morning. How are you? Thank you, sir. Fine. Thank you, sir. How are you, sir? Fine, fine. After a long time. Sir, I attended, sir, 2 days back also. You were not there, sir. That. Okay, no problem. You please speak something. Okay. Yes. So, thank you for the message, sir. Actually, I have learned a few things. What is a religious duty? So, he said, sir, following Shastra and also the instructions. The instructions are written in Shastra. We should follow instructions. We have to do accordingly. So, and also religious duty means family, serving family. So serving father and mother, our brothers, and all our sisters. No, this is a very important point to reminded it, sir. Many times there is chance. Even I neglected my parents sometimes due to all busy work and all those things and all. So this is reminding to just to serve them also. And another thing, to work for society. So, and also, sir, and who is the intelligent people means who does Sankirtana. So we have the who does Sankirtana, who praises God all the time. So these are the intelligent people, you said, sir. And also, when we follow Shastra, the people love us. So because we follow according to the instruction written in it. So these few things I have learned today, sir. Thank you, sir. Thank you, Ram Gopal. Very beautiful. Thank you very much. Okay, so we'll stop here. Hare Krishna. Thank you very much. I hope